वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग देखेंगे रोलिंग प्रोसेस। ठीक है, इसका वर्चुअल लैब करेंगे। प्रोसेस में हम पहुंचते हैं। प्रोसेस में पहुंचने के बाद हम ये रोलिंग जो आप देख रहे हो यहाँ पे ऑप्ट करेंगे। ओके, अब ये पेज ओपन हुआ है जिसमें कि रोलिंग प्रोसेस का यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लास्टिकली डिफॉर्मिंग मेटल बाय पासिंग इट बिटवीन रोल्स। रोलिंग may be defined as the reduction of the cross-sectional area of the metal stock or the general shaping of the metal product through the use of the rotating rolls. ठीक है, it allows a high degree of closed loop automation and very high speed and is thus capable of providing high quality closed tolerance starting materials for various secondary sheet metal working process at a low cost. Rolling is the most widely used forming process which provides high production and close control of final product. The metal is subjected to high compressive stress as a result of the friction between the rolls and the rolling process metal surface. Okay, hot rolling. The initial breakdown of ingots into blooms and billets is generally done by हॉट रोलिंग। हॉट रोलिंग क्या है कि दिस इज फॉलोड बाय फर्दर हॉट रोलिंग इनटू प्लेट, शीट रॉड, बार, पाइप, रेल इत्यादि। ओके, एडवांटेज हम देखते हैं इसका। फ्लो स्ट्रेसेस आर लो, hence force and power requirements are relatively low and even very large workpiece can be deformed with equipment of reasonable size. Ductility is high, hence large deformation can be taken in excess of 99% reduction. Complex part shape can be generated. Cold rolling. The cold rolling of metals has played a major role in industry by providing sheet strips foil with good surface finish and increased mechanical strength with the close control of product dimension. Okay. Advantage. In the absence of cooling and oxidation, tighter tolerance and better surface finish can be obtained. Thinner walls are possible. The final properties of the workpiece can be closely controlled and if desired, the high strength obtained during cold rolling can be retained, or if high ductility is needed, grain size can be controlled before annealing. Lubrication is in general easier. Okay? हम यहाँ पर अरेंजमेंट देख रहे हैं रोलर का। अगर टू हाई मिल्स है पुल ओवर, तो आप देख रहे हैं ये हमारा वर्क पीस है और ये दो रोलर है, अपर एंड लोअर रोलर, जिसको कि यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्शन भी एरो से डिनोट किया गया है। ये हमारा टू हाई मिल रिवर्सिंग है। ठीक है, ये हमारा वर्क पीस है दोनों रोलर के बीच, और रोलर का जो है जो जिसमें ये रोल हो रहा है उसका डायरेक्शन भी दिखाया गया है। 3 हाई मिल, यहाँ पर 2 आपका वर्क पीस है और 3 रोलर है। आप डायरेक्शन देख सकते हो। 4 हाई मिल, ये रोलर है हमारा, ये भी रोलर है और ये भी रोलर, ये वर्क पीस है। आप यहाँ पर इसका व्यू देख सकते हो, फ्रंट व्यू। ये हमारा क्लस्टर मिल और सैंडविच मिल कहते हैं इसको हम लोग। कंटिन्यूस रोलिंग, प्लेनर मिल, ये सब जो है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो हमारा है टिपिकल अरेंजमेंट ऑफ रोलर फॉर रोलिंग मिल। Rolling mill is a machine or a factory for shaping metal by passing it through roller successive stand of a large continuous mill. A rolling mill basically consists of rolls bearing a housing for containing these parts, a drive motor for applying power to the roll and controlling the speed. Requires very rigid construction, large motors to supply enough power.
conventional hot or cold rolling. Okay, the objective is to decrease the thickness of the metal with increase in length and with little increase in width. ये हमारा ट्रांसवर्स रोलिंग है, आप देख सकते हो। ट्रांसवर्स रोलिंग में क्या होता है कि हीटेड बार इज क्रॉप टू लेंथ एंड फेड इन ट्रांसवर्सली बिटवीन रोल। सर्कुलर वेज रोल यूज करते हैं इसमें, रिवॉल्व इन वन डायरेक्शन। ये हमारा है जो है वो हमारा सेप्ट रोलिंग और सेक्शन रोलिंग है जो आप देख रहे हो, ठीक है। इसमें फ्लैट स्लैब इज प्रोड्यूसली बेंट इनटू कॉम्प्लेक्स शेप बाय पासिंग इट थ्रू ए सीरीज ऑफ ड्राइव इन रोल। अब जैसे एंजम्पशन हम लोग लेते हैं, ठीक है, क्या क्या लेना है। द आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द रोल एंड द मेटल इज ए पार्ट ऑफ ए सर्कल। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज कांस्टेंट इन द theory but in reality varies along the arc of contact. The metal is considered to deform drastically during rolling. The volume of metal is constant before and after the rolling. In practical, the volume might decrease a little bit due to close-up of pores. The velocity of the rolls is assumed to be constant. The metal only extends in rolling direction and no extension in the width of the material. The cross-section areas normal to the rolling direction is not distorted. ये हमारा एंजप्शन था। फोर्स एंड ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप इन रोलिंग आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। बी एच नॉट बी नॉट इक्वल टू बी एच बी इक्वल टू बी एच एफ वी एफ, जहां पर आप देख सकते हो बी जो है हमारा है, ठीक है, एच हमारा हाइट है और भी जो है ये वेलोसिटी है। B is the width of the sheet। तो इस इक्वेशन को ड्राइव करने के बाद आप देखो रिलेशन निकला है बी नॉट बाय बी एफ इक्वल टू एच एफ बाय एच नॉट। The velocity of the sheet must steadily increase from entrance to exit such that a vertical element in the sheet remain undistorted. A radial force आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर LP भी फाइंड आउट किया हुआ है हमारा, रूट अंडर आर डेल एच। म्यू इक्वल टू 10 अल्फा। म्यू क्या है हमारा coefficient of friction. If 10 alpha greater than mu, the workpiece cannot be drawn. If mu equal to 0, rolling cannot occur. ये दो जो है आपका वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ एक रिलेशन भी फाइंड आउट है, मी स्क्वायर आर इक्वल टू क्या हो डेल एच मैक्स। Torque and power. Torque is the measure of the force applied to a member to produce rotational motion. Power क्या है? Power is applied to a rolling mill by applying a torque to the rolls and by means of strip tension. ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो था वो रोलिंग का इंट्रोडक्शन यानी थ्योरी हुआ। अब हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, तो सीधे हम चलेंगे प्रोसेस पे, ठीक है। प्रोसेस में हम गए रोलिंग प्रोसेस, तो ये आया। अब सिमुलेशन बेंच, ओके। सिमुलेशन बेंच में आप देख रहे हैं कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्ट मटेरियल ऑप्ट करेंगे। मटेरियल हम क्या ले रहे हैं, एल्युमिनियम ले रहे हैं, ओके। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो लो ले रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ रे में स्पीड कितना ले रहे हैं हम लोग, 1 mm पर सेकेंड। और मटेरियल या वर्कपीस टेम्परेचर क्या है हमारा, कोल्ड, ओके। अब मैं से सबमिट कर रहे हैं। अब जो है आप इसे देख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में
1 मिनट। This video shows the rolling operation taking place using 3 different set of rollers. The slab of aluminium is taken cold rolling. Zero friction between roller and slab is shown on the top in the video. The roller sets are rotating with the 1 rpm speed with lower rollers moving clockwise and vice versa. On the right hand side, one could see 2 graphs of forging force evaluation on lower and upper rollers respectively. Okay. और आप ये जो स्केल देख रहे हो, ये जो स्केल है हमारा स्ट्रेन को शो कर रहा है, जो कि रोलिंग प्रोसेस के थ्रू हमारा चेंज हो रहा है। ओके, आप इस फिगर में आप एक बार फिर से देख सकते हैं, इसमें कलर चेंज हो रहा है। ये कलर आपका यहाँ से डिनोट किया गया है कि कितना स्ट्रेन इसमें डेवलप हो रहा है। ओके, रोलिंग प्रोसेस के थ्रू। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन पे। ओके, एप्लीकेशन में हम जा रहे हैं फ्लैट प्लेट रोलिंग, फ्लैट प्लेट रोलिंग। आप देख सकते हो एप्लीकेशन यहाँ पर इस वीडियो में जो हम देख रहे हैं, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं रोलिंग प्रोसेस, जिसमें कि कॉपर शीट है जिसका लेंथ, विड्थ और थिकनेस जो है वो 100 mm, 50 mm और 10 mm है। ये जो आप राइट साइड देख रहे हो प्रोसेस, रोलिंग प्रोसेस है, जिसमें कि अपर रोलर और लोअर रोलर यूज हो रहा है, जिसका डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। ओके, और ये जो आप देख रहे हो कि कलर जो चेंज हो रहा है हमारा, ओके, आप जो ये लेफ्ट साइड में देख रहे हो, ये जो स्केल है जो डिफरेंट कलर है, डिफरेंट कलर सोर्स कर रहा है स्ट्रेन को। ओके, जो कि रिड्यूस क्या कर रहा है, इसका जो विड्थ है इसको ये आपका ये 2t था थिकनेस, और ये t यानी कि हाफ कर दिया इसके थिकनेस को, यानी सीट के थिकनेस को। तो ये हमारा था रोलिंग ऑपरेशन। तो ये हमारा रोलिंग ऑपरेशन जो आप देख रहे हो कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लैब के साथ आएंगे। थैंक यू।